یہ کہانی ہے سال 1071 کے ایک ایسے دن کی جب آسمان نے دیکھا کہ ایمان کی ایک چنگاری سلطنتوں کے ایوان ہلا سکتی ہے۔ یہ قصہ ہے ایک ایسی جنگ کا جس نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ وہ دن جب اناطولیہ کی سنہری وادیوں پر اگست کی دھوپ اپنے نیزے تیز کر رہی تھی، افق پر دو عظیم لشکر آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف بازنطین سلطنت کا شہنشاہ رومانوس چہارم اپنے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ، دوسری طرف سلجوقوں کا ایمان سے لبریز لشکر۔ رومانوس اپنی فولادی زرہ بختر سے ڈھکے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا۔ شاندار گھوڑ سوار، ماہر تیر انداز، نیزہ بردار اور یورپ و ایشیا کے گوشے گوشے سے بلائی گئی اجرتی فوجیں اس کے حکم پر صف آرا تھیں۔ دوسری طرف ہر سلجوق سپاہی کی تلوار کا دستہ وضو کے پانی سے بھگویا گیا تھا۔ یہ گھوڑے کی کاٹھی میں جینے والے ریت کے طوفانوں اور سرد و گرم موسم کے عادی وہ جانباز تھے جو جان سے بڑھ کر کلمے کی حرمت کے لیے لڑتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین کی سانس رک گئی، پرندوں کی پرواز تھم گئی اور ہوا دونوں لشکروں کے بیچ الجھ کر ساکت ہو گئی۔ یہ صرف ایک زمینی جنگ نہ تھی، یہ فیصلہ آسمان پر بھی لکھا جا رہا تھا۔ ایک طرف تکبر اور سلطنت کا غرور کھڑا تھا، دوسری طرف ایثار، صبر اور یقین کا لشکر۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا جب نیتیں خالص ہوں تو ریت کا ایک ذرہ بھی پہاڑ کو ہلا دیتا ہے اور فولاد کا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ وہ دن آن پہنچا تھا جب ہلال نے صلیب کا سامنا کرنا تھا۔ اگست کی جھلستی دوپہر میں اناطولیہ کے سنہری میدانوں پر سورج یوں قہر برسا رہا تھا جیسے آسمان نے ساری تپش زمین پر انڈیل دی ہو۔ خشک گھاس کی مہک ہوا میں رچی تھی اور خاک ہر قدم پر بھڑک اٹھتی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا آج تاریخ صفحہ پلٹنے والی ہے۔ لشکر قریب آ رہے تھے، ماحول ہیبت ناک ہوتا جا رہا تھا۔ مشرق کی سمت سلجوقی لشکر کی گردیوں اٹھ رہی تھی جیسے کوئی صحرا اپنی روح تک ہلا رہا ہو۔ ان کے جھنڈے ہوا میں لرز رہے تھے، ہر جھنڈے پر چمکتا ہلال ایمان اور استقامت کی علامت تھا۔ ہر سپاہی کی آنکھ میں وہ چمک تھی جو جان دے کر بھی بجھ نہیں سکتی۔ مغرب کی طرف بازنطین سلطنت کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ فولادی زرہوں میں لپٹے گھوڑ سوار، لمبے نیزے تھامے پیدل فوجی اور صلیب کے سنہری بینر جو دھوپ میں چمک کر آنکھیں خیرہ کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک فوج نہیں، یورپ کا غرور تھا جو مشرق کے دروازے پر دستک دینے آیا تھا۔ میدان ملازکرد کے قریب ایک چھوٹے دریا کے کنارے سلطان الپ ارسلان نے اپنا گھوڑا روکا۔ اس کی سانسیں مستحکم تھیں، نگاہ میں بدر کے مجاہدوں جیسا وقار تھا۔ سفید امامہ سر پر ایمان کا تاج لگتا تھا، سادہ زرہ زہد کی گواہ تھی، ہاتھ میں کمان اور دل میں سب سے بڑا ہتھیار یقین۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہونٹ ہلے اور الفاظ تیر کی مانند نکلے، یہ جنگ میری نہیں اللہ کے لیے ہے۔ اس لمحے دریا کے پانی میں سورج کی جھلک لرز رہی تھی جیسے قدرت خود اس فیصلے کی گواہ بننے کو تیار کھڑی ہو۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی سلطنت کا وہ بے خوف سپہ سالار جس نے چند ہی برسوں میں ایران کے دشت اور اگزار سے خراسان کی وادیوں تک، آذربائیجان کے بلند پہاڑوں سے اناطولیہ کے سنہری میدانوں تک فتوحات کی گونج پھیلا دی تھی۔ الپ ارسلان کی پیش قدمی صرف سرحدیں نہیں بدل رہی تھی بلکہ دنیا کا سیاسی توازن بھی ہلا رہی تھی۔ بغداد میں عباسی خلیفہ سے لے کر حجاز تک اس کی بہادری کے چرچے ہو رہے تھے، مگر اب اس کے سامنے ایک ایسی آزمائش آ چکی تھی جو صدیوں تک یاد رکھی جانی تھی۔ دوسری جانب بازنطین سلطنت کا شہنشاہ رومانوس چہارم ڈائیوجینیز، جس کی بگڑتی سلطنت دشمنوں کے نرغے میں تھی، جانتا تھا کہ ایک فیصلہ کن حملہ ہی اسے بچا سکتا ہے۔ وہ اناطولیہ واپس لینا اور مشرق میں صلیب کا اثر دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے رومانوس نے اپنی سلطنت کے وسائل جھونک دیے اور ایک ایسی فوج تیار کی جو دیکھنے والے کو فولادی بگولا محسوس ہوتی تھی۔ یہ فوج ہر لحاظ سے انتہائی طاقتور سمجھی جا رہی تھی۔ اس کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی، جن میں یونانی زبردست بازو بردار، آرمینی ماہر تیر انداز، فرانک گھڑ سوار اور بلغاری کرایہ دار شامل تھے۔ ہر سپاہی اس عزم کے ساتھ آیا تھا کہ مشرق کو جھکا کر ہی واپس آئے گا۔ ان کے مقابل الپ ارسلان کے پاس صرف 40,000 جانباز تھے، مگر یہ عام سپاہی نہ تھے۔ یہ گھوڑے کی کاٹھی میں پروان چڑھے، صحرا کی سختیوں میں بڑے ایمان کے زخم خوردہ مگر فولادی مجاہد تھے۔ ان کے لیے جان سے بڑھ کر کلمے کی حرمت اہم تھی اور میدان جنگ ان کا محبوب مسکن تھا، اور آج وہ بازنطینیوں کا سامنا کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے تھے۔ 26 اگست 1071 کی صبح سورج اناطولیہ کے میدانوں پر طلوع ہوا تو الپ ارسلان نے اپنے 40,000 جانبازوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس نے جنگی زرہ کی بجائے سفید کفن زیب تن کیا۔ گھوڑے کے رکاب پر کھڑے ہو کر اس کی نگاہیں لشکر پر دوڑیں اور لبوں سے الفاظ موت اور ایمان کا عہد بن کر نکلے۔ آئے مجاہدو، آج تمہارے اور جنت کے درمیان صرف ایک تلوار کی دھار باقی ہے۔ میں نے اپنے لیے کفن پہن لیا ہے، اب یہ تو اللہ ہمیں فتح دے گا، یہ شہادت کا شرف ملے گا۔ یہ الفاظ کسی عام حکم کی طرح نہیں بلکہ ایک حلفیہ اعلان کی طرح فضا میں گونج گئے۔ سپاہیوں کے دل تیز دھڑکنے لگے، شانسیں بپھر گئیں۔ ایک ہی لمحے میں ہر طرف تلواریں آسمان کی طرف بلند ہوئیں، ہزاروں آوازیں ایک ساتھ تکبیر کے نعرے میں مل گئیں۔
अल्लाह अकबर की गूंज पहाड़ों से टकरा कर वापस आई, जैसे खुद जमीन भी जंग के लिए आमादा हो। इस लम्हे कोई अपने घर, अपने माल या अपने जख्म नहीं सोच रहा था। सबकी नजरें सिर्फ एक मंजिल पर थीं, अल्लाह की रजा और इस्लाम की सरबुलंदी। दिल और दिमाग सरशार हो रहे थे और जज्बा उरूज पर था। बाज़ंतय कैंप में रोमानूस अपनी शानदार ज़िरा बख्तर में सूरज की रोशनी में चमक रहा था। इसके इर्द गिर्द जर्नलों की ज़बान पर तकब्बुर था। वो दावा करते थे कि सल्जोकियों को एक दिन में कुचल डालेंगे। उनके लिए ये जंग एक रस्मी मुहिम थी, जैसे कोई शिकार की मुहिम पर निकला हो। उनके दिल में गुरूर का जहर घुला था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक सहराई कौम किसी अजीम सल्तनत के वकार को चैलेंज दे सकती है। उनके कान सिर्फ अपनी फतह के तराने सुनने के आदी थे, इसलिए हकीकत की सरगोशियां उनके गुरूर की गूंज में दब गईं। मगर गुरूर हमेशा अंधा होता है। वो ये नहीं जानते थे कि उनके सामने सिर्फ घोड़े और तीरों वाले जंगजू नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं जिनकी रगों में बदर की ललकार, अहद का सब्र और कादसिया की जुर्रत बहती है। वो लोग जिनका हर तीर एक ईमान की किस्म था। दोपहर के करीब अल्लाह अरसलान ने अपने जर्नलों को करीब बुलाया। निगाहें आसमान की तरफ उठाकर बोला, आज हम अल्लाह के नाम पर लड़ेंगे, न अपनी जान के लिए, न जमीन के लिए, बल्कि इस ईमान के लिए जो हमारे दिलों में धड़कता है। फिर इसने अपने जर्नलों को जंगी तरतीब समझाई। सल्जूकी घुड़सवार बादल की तरह लपके दुश्मन की सफों पर तीर बरसाते, नेज़े चमकाते, फिर अचानक रेत की आंधी की तरह पीछे हो जाते। ये पुरानी तर्क चाल थी जो दुश्मन के सब्र को तोड़ती और उसके कदमों को अपने जाल में खींच लाती। गर्द आसमान को ढांप रही थी। बाज़ंतय लश्कर अपने अना के जहर में डूबा हर कदम पर आगे बढ़ता गया। रोमानूस को यकीन था कि दुश्मन भाग रहा है। इसके जर्नैल घोड़े दौड़ाते हुए चीख रहे थे, आज ये सहराई बेड़िए हमारे कदमों में होंगे। मगर गुरूर की आंख हकीकत को देखने से हमेशा अंधी रहती है। सूरज ढलने के करीब था। दुश्मन की सफ़ें खोल चुकी थीं, कल्ब और बाजू दोनों खाली हो गए थे। तब अल्लाह अरसलान ने हाथ बुलंद किया और आसमान जैसे सुन पड़ा। दाएं और बाएं के लश्करों को लपकने का इशारा दिया। एक लम्हे में सल्जूकी अलगार की बिजली चारों समत गरजने लगी। पहाड़ों से गूंजती तकबीर ने जमीन को हिला दिया। अल्लाह अकबर। ये नारा सिर्फ आवाज नहीं था, ये ईमान की कड़क थी। तीरों का तूफान आसमान को छेद रहा था, घोड़ों की टॉप जमीन को रौंद रही थी, तलवारों की चमक आंखें चुंधिया रही थी। दुश्मन के दिलों पर लर्जा तारी हो गया। रोमानूस का फौलादी लश्कर लम्हों में मुंतशिर होने लगा। ज़िरा बख्तर के शोर में खौफ की चीखें घुल गईं। बाज़ंतय घोड़सवार एक दूसरे पर गिरते, तीरों में उलझते, जमीन पर तड़पते। वो लम्हा आ चुका था जब सल्जोकियों की ललकार तारीख पर अपने अल्फाज लिखने वाली थी। गर्द खून की खुशबू में बदल गई। अल्लाह अरसलान की तलवार फिजा को चीरती लश्कर के आगे थी। इसकी आंखों में शोले थे, होंठों पर दुआ। इसके पीछे हजारों मुजाहिद एक ही दिल, एक ही कदम, एक ही यकीन के साथ बढ़ रहे थे। ये मरका सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान पर भी लिखा जा रहा था। दुश्मन की सफों में अफरातफरी इस तरह फैल चुकी थी जैसे खुश्क घास में आग। बाज़ंतय तीरंदाज पीछे हटने लगे, मगर सल्जूकी घोड़सवार बादल की तरह घूमकर उन्हें घेर लेते। हर सम से नेज़े टूट रहे थे और फिजा में धात के टकराने की कड़क ईमान के नारों से मिल रही थी। रोमानूस ने घबरा कर अपने अलमबरदारों को इशारा दिया कि झंडे इकट्ठे करें और कल्ब को संभालें, मगर अब देर हो चुकी थी। दुश्मन के बाईं बाजू पर सल्जोकियों का दबाव बढ़ता गया। टर्क घोड़सवार तीर बरसाते और तेज झपट कर निकल जाते, जैसे शिकारी उकाब अपने शिकार को हवा में लपक लेते हैं। बाज़ंतय जर्नैल एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगे। कोई कहता, सफ़े संभालो, तो दूसरा चीखता, पीछे हटो वरना सब मर जाएंगे। इस इंतशार ने खौफ को दुगना कर दिया। अल्लाह अरसलान के तीरंदाजों ने करीब आकर फासला कम कर दिया और अब हर तीर एक धड़कन पर निशाना लगाता था। दुश्मन की हिम्मत घुल रही थी। शाम का सूरज अनातोलिया के मैदान मुल्लाज़कुर्द पर खून रंग कर रहा था। शाम 26 अगस्त 1071 की थी, जब बाज़ंतीनियों का गुरूर मिट्टी में मिलने वाला था। मैदान में हर समत जख्मी घोड़े, टूटे नेज़े और बिखरे झंडे पड़े थे। तकबीर की गूंज शिकस्ता सलीबों के साए को चीर रही थी। बाज़ंतय लश्कर का जलाल अब गर्द और गुबार में दम तोड़ रहा था। शहंशाह रोमानूस चहार जानिब अपने गार्ड के साथ लड़ता रहा। इसके पहलू में जर्नैल फोतनेट्स जख्मी होकर गिर चुका था और मायूस सिपाही पीछे हटने लगे। मगर तकदीर के वार को रोकने वाला कोई न था, ना फौलाद न ताज। एक तेज तर तीर अंदाज ने अपना तीर कमान पर चढ़ाया। वो तीर सीधा शहंशाह के घोड़े के गर्दन पर पैवस्त हुआ। घोड़ा चीख कर गिरा और रोमानूस धूल और खून में लिपट कर जमीन बोस हुआ। इसके इर्द गिर्द मुहाफिज लड़खड़ा कर गिर गए। लम्हों में इसे कैदी बना लिया गया। कैदी बनने के बावजूद रोमानूस के चेहरे पर कमाल की संजीदगी थी। इसे रेशमी रस्सी से बांधकर सल्जूकी खैमे की तरफ लाया गया।
वहां ना सोने के तख्त थे, ना जमुर्द के पर्दे, बस जमीन पर बिछी एक मामूली चटाई थी। अलप अरसलान इसी पर बैठा निगाहों में वकार और सुकून लिए। सुल्तान ने रोमानूस को करीब ब्यूला कर कहा, मैं वही अलप अरसलान हूं जिससे तुमने जंग शुरू की थी। ये जुमला एक तलवार की तरह शहंशाह के गुरूर को काट गया। फिर सुल्तान ने सवाल किया, अगर तुम जीतते तो मेरे साथ किया करते? खेमे में लम्हा भर को मौत की सी खामोशी छा गई। तारीख ने सांस थाम ली। रोमानूस ने नजर झुकाकर कहा, शायद तुम्हें कत्ल कर देता या कैद में डाल देता। ये अल्फाज किसी एतराफ शिकस्त से कम ना थे। अलप अरसलान के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। लेकिन मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। तुम आजाद हो, मगर वदा करो कि हमारे खिलाफ तलवार ना उठाओगे। रोमानूस ने कमजोर आवाज में हाँ कही। ये वो लम्हा था जब एक फातेह ने दुनिया को दिखाया कि असल अजमत दुश्मन को जलील करने में नहीं, मुआफ करने में है। मुल्लाज़कुर्द की फतह ने सल्जूकी परचम को शाम से बुहेरा एजियन तक लहरा दिया और बाज़ंतए गुरूर को सदियों का जख्म दे दिया। मुल्लाज़कुर्द की फतह ने अनातोलिया के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए। सल्जूकी टर्क कौनिया, सिवास और किसरिया तक जा पहुंचे। ये फतूहात महज फौजी कामयाबियां न थीं, बल्कि आबादी की मुंतकली और तर्क सकाफत के फैलाव का आगाज थीं, जो बाद में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद बने। इस शिकस्त ने बाज़ंतए सल्तनत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कुस्तुनतुनिया के दरबार में सियासी बहरान, बगावतें और जर्नलों की कशमकश शुरू हो गई, और उनका हतमी नतीजा खिलाफत उस्मानिया के हाथों कुस्तुनतुनिया की फतह निकला। यूरोप के लिए ये एक झटका था, क्योंकि सलीबी जंगों की तहरीक भी इसी शिकस्त के बाद उठी। मगरबी ईसाइयत ने पहली बार मशरकी ताकत के खौफ को महसूस किया और सलीब हिलाल से हार चुकी थी। अलप अरसलान का सफेद कफन और 40,000 का लश्कर 2 लाख के फौलादी बाज़ंतए लश्कर पर गालिब आया। इस दिन से यूरोप कभी वो ताकत वापस ना ला सका। अनातोलिया की वादियों में टर्क ज़बान, इस्लामी फिन तामीर और बाजारों की खुशबू बस गई, और तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल गया। इस फतह ने मशरिक और मगरिब के ताकत के तवाजुन को पलट दिया। शाम, इराक और खरासान के बाजारों में मुल्लाज़कुर्द का जिक्र गूंजता रहा, जबकि यूरोप के गिरजा घरों में इसका नाम खौफ की अलामत बन गया। तारीख ने इस दिन को सल्तनत इस्लामिया के उरूज का मोड़ करार दिया। बस यूं ये तारीख साज मारुका अपने अंजाम को पहुंचा। मैदान सन्नाटे में डूबा था, मगर हवा में खून की महक और घोड़ों की टापों की मध्यम गूंज अभी बाकी थी। अलप अरसलान ने ढलते सूरज को तकते हुए कहा, तलवार की साख्त नहीं, बल्कि नियत की पाकीज़गी तारीख का फैसला करती है। इसकी आवाज में वो यकीन था जो सिर्फ मैदान जंग में जन्म लेता है। जब मकसद अल्लाह की रजा हो तो फरिश्ते भी सफों में उतरते हैं और कलील लश्कर पहाड़ों को रौंद देता है। ये अल्फाज जैसे तारीख के औराक पर कंदा हो गए और आने वाले जमानों के लिए चिराग बन गए। मुल्लाज़कुर्द का पैगाम सदियों तक मशरिक और मगरिब में गूंजता रहा। सल्जूकी टर्क अनातोलिया में मुस्तकिल बस गए, और उनके वारिस उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया फतह करके बाज़ंतए सल्तनत के बाकी मानदा चिराग भी बुझा दिए। यूरोप की सलीबी अलगारें इसी शिकस्त के जख्म पर मरहम रखने की बेसूद कोशिशें करती रही। ये दास्तां आज भी गवाह है कि जब ईमान, अज़्म और कुर्बानी एक सफ में खड़े हों तो सल्तनतें मिट जाती हैं और नक्शे बदल जाते हैं। मुल्लाज़कुर्द एक जंग नहीं, बल्कि ऐलान था कि जब दिलों का मालिक साथ हो तो कोई उफ़ुक़ इंसान की पहुंच से बाहर नहीं रहता। तो चलिए ये बताइए कि क्या आज भी मुस्लिम दुनिया में कोई अलप अरसलान जैसा रहनुमा पैदा हो सकता है जो इस्लाम की तरफ बढ़ने वाली अलगार को रोक सके और टूट फूट का शिकार मसाइब में घिरी उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का हल आखिर किया है।